एक ट्रेन जाती है पंजाब के मालवा रीजन से, पूरी ट्रेन को बोलते हैं कैंसर ट्रेन. आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज scared out of my wits end because they cannot afford treatment. They don't have the infrastructure to be able to afford treatment. अब इसके लिए किसको जिम्मेदार मानो? सरकार, हम लोग, किसान? मैं एक चीज पे फिंगर नहीं रख पा रही हूँ. ओके, अब आपकी इंडिया स्टोरी पे आते हैं. इंडिया स्टोरी, ये सब्जेक्ट जब मैंने देखा, ये पता था मुझे, बहुत सारी बातें इस बारे में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में की थी, इसके आसपास की बातें, जिसमें फ्रोजन फ्रूट की बात भी थी, बट ये उससे भी आगे था. सबसे पहले इंडिया स्टोरी, चलो मैं एक क्वेश्चन सिंपल कर लेता हूँ. आप लॉयर बने उस फिल्म में, पिंक में लॉयर रहे हैं, जॉली एलबी में लॉयर रहे हैं, जय भीम में लॉयर थे, काजोल भी अब एक फिल्म में आई थी कोर्ट, उसमें लॉयर थी, काजल द लॉयर. इन सबसे कितनी अलग है, कैसे है? या इनमें से किसी को देखा आपने? मैंने सबका काम देखा है and I've really appreciated it. Not as homework for mine, but generally as an audience. I love legal drama. It's one of my favorite genres. I've never done legal drama before. This is pretty much my first. But first strong role where I am pretty much spearheading the film. And the whole crux of the film is legal drama. So this is my first where it's something so important and strong. I've played a lawyer before. But I just feel so with due respects to all their क्यूट वाली लॉयर होगी ना, ये वाली बहुत सीरियस. Exactly. So here the seriousness of the film was very important to me. And how am I different? I wasn't trying to be different. I was trying to be myself. किसी को देखा इस रिसर्च में, किसी लॉयर को इससे पहले? फिल्में तो बहुत देखी हैं, सबकी फिल्में देखी हैं. फेवरेट लॉयर आपका कौन है फिल्मों में? अच्छा, I was like, what, this is ये realize going to become now controversial. अच्छा, no. तारीख पे तारीख या अमिताभ बच्चन, no means no. Yeah, of course, Amitabh sir is amazing and he's a legend when it comes to playing legal. But I don't think I had any one favorite as such. I never had like one benchmark figure in my head where I was like, okay, this is what I want to imitate or copy or emulate. वैसे नहीं था. मैंने सबका काम देखा, रिसर्च के तौर पे नहीं, ऑडियंस के तौर पे. लेकिन यहाँ पे जब मैं कर रही थी, I just wanted it to be real. And I wanted the subject around it to be the highlight and the hero of the film. And the subject of the film is extremely important, very relevant to today. And ये हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है. तो जैसे काजल अग्रवाल बहुत फैमिली है जी, बच्चों से बहुत कनेक्टेड है, हस्बैंड से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से. जब उन्हें इस फिल्म का प्लॉट पता लगा कि जो थाली हमारे पास आ रही है उस थाली में जहर है या स्लो पॉइजन है, और वो स्क्रिप्ट पढ़ी, क्या दिमाग में चला? डर गई मैं. It's something to genuinely, आप भी देख के डरने वाले हो. It's not something that we have to take lightly. Because like we discussed, if this is the way the world is going in terms of social relationships, this is another issue, right, that we are dealing with. And it's a real issue where there are cancer belts. The repercussion of pesticides and insecticides and all these artificial fertilizers that are being used is genuinely creating a havoc with our hormones, our internal systems, creating cancer to this extent where we are normalizing it. It's not even shocking anymore that this person has cancer or that person has cancer. It's just become so normal to hear of it. True. And it's sad. It's not the way it's supposed to be. So I feel, sorry, I'm going to say this in English because I want to express my views about this and I will not be able to think so fast in Hindi. चलेगा. I feel that this cannot be the new normal. This has to change. And the change has to start on an individual level like you and me, where we, calling the shots for the family, we ensure that our families are being fed properly. We are, see, there cannot be any mitigation of risk, but there can be minimization of risk. So you minimize it to the maximum that it's possible, right? Like you ensure that your family eats produce from the right kind of people, or you procure your ingredients from the right kind of people. Whatever you know is right. Whatever you feel is right. Whatever research you do is right. Similarly, I do the same for my family. We minimize the risk as much as possible. तो जैसे अब आप एक्ट्रेस हो, बाहर काम करते हो,
अब जो थाली खाना आपके सामने आता होगा, क्या वो डराता है? रोज के तौर पे तो इतना टाइम नहीं मिलता इतना सोचने के लिए, बट लेकिन जो क्योंकि आपने राशन घर पे आता आपने है। फिल्म की है ना, तो जी, उस आई एम श्योर जब आप इस पे 2 महीने 3 महीने आपने दिए जी, होंगे, तो उस ज़ोन में गए होंगे। बिल्कुल, उस टॉपिक पे ज़्यादा सोच रहे होगे। जैसे बिल्कुल। पिछले 24 घंटे से मैं काजल अग्रवाल सोच रहा हूँ, क्योंकि आपका पॉडकास्ट करना था मुझे। ऐसे ही जब आप एक फ़िल्म कर रहे होगे जो पेस्टिसाइड से बनी हुँ, है या इस हुँ। सारी केमिकल्स को लेके बनी है, फूड पॉइज़न को लेके बनी है, सबसे शॉकिंग क्या था? मतलब कोई एक सीन या कोई एक कहानी, कोई एक स्टार्ट जो आपको पता लगा और फिर उसने आपका दिमाग खराब कर दिया जिसका अपनी फैमिली में आपने बातें की होगी? सबसे शॉकिंग ये था कि एक ट्रेन जाती है, क्या आप इसके बारे में जानते हो, ये स्टैटिस्टिक के बारे में? कि एक ट्रेन जाती है पंजाब के मालवा रीजन से राजस्थान, बीकानेर होके जाती है और ये पूरी ट्रेन को बोलते हैं कैंसर ट्रेन, where there are cancer patients in the entire train. I was unaware of this. I was shocked and I was scared out of my wits' end. It's a whole legit train that goes because they cannot afford treatment. They cannot, they don't have the means, they don't have the facilities, they don't have the hospitalization, they don't have the infrastructure to be able to afford treatment. So there's a train that actually goes from point A to point B full of cancer patients. It's shocking and it's scary and it's very worrisome. That on a human level, what are we doing? आप इसके लिए किसको ज़िम्मेदार मानते हो फिर? आपने इसकी पूरी रिसर्च की होगी। सरकार, हम लोग, किसान, क्योंकि सबका थोड़ा-थोड़ा दोष लगता है मुझे। कोई ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कर रहा है, कोई नियम को सही से फॉलो नहीं करवा रहा, कोई जाँच नहीं करवा रहा, हम लापरवाह होकर खरीद ले रहे हैं, या इस आबादी को, कितनी बड़ी आबादी है, भाई इतनों के लिए कहाँ से लाएँगे? Everything put together. There's no one. मैं एक चीज़ पे फिंगर नहीं रख पा रही हूँ कि इनकी प्रॉब्लम है, हम सबकी प्रॉब्लम है और हम सबका दोष है इसमें। आई थिंक कि डेफिनेटली आबादी इतनी है कि वो खाना कैसे प्रोड्यूस करें? ज़मीन तो उतनी ही है ना और उसमें से जो निकलेगा वो उतना ही क्वांटिटी में निकलेगा। उसको अगर अभी आपको इतने करोड़ों लोग को खाना खिलाना हो तो आपको उतना प्रोड्यूस जल्दी करना पड़ेगा ताकि बारिश बीच में ना आए। उतने महीने हैं किसानों के पास, फसल उतनी जल्दी चाहिए हम सबको। डिमांड वर्सेस सप्लाई, डिमांड इतना ज़्यादा है, सप्लाई उतना नहीं दे पा रहा। फिर आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम लोग ताकि जल्दी बढ़े, क्रॉप जल्दी बढ़े, 2 साइकिल्स हों सेम सीज़न में। सब सब ऐसे मिला के सबका प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है जो इंडिया स्टोरी का टॉपिक है वो नेशनल इमरजेंसी से टॉपिक है, कि आपको इसको उस लेवल पे जाके फिक्स करना होगा तब जाकर शायद, क्योंकि ये सच है, मैंने कैंसर के बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, डॉक्टर्स हमारे यहाँ आते रहते हैं एंड दे लाइक कि 30-40 इज न्यू 60। अब बहुत नॉर्मल हो गया, आपको प्रदूषण मार रहा है, कुछ आपकी हिस्ट्री ले रही है, थैंकफुली हम सब बहुत स्ट्रेस लेना पसंद करते हैं, तो वो भी एक 100%. मजा आ रहा है। It's और all जो true. Yeah. थोड़ी बची कुची कुसर है वो आपका खान पान, Yeah. हमें लगता है हमने सब्जी धो दी, हो गया साफ। Yeah. True. तो ये जब पूरी फिल्म आपका सब्जेक्ट आपने पढ़ा किया आपने, डू यू थिंक कि इसको भी नेशनल इमरजेंसी जैसे मतलब उस तरह से मान के हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा नीचे ग्राउंड रूट पे आके, क्योंकि अब आई थिंक सब फर्जीवाड़ा चल Yeah, रहा है। 100%. Yes. देखिए मैं सोल्यूशन तो जानती नहीं हूँ मैं तो आई आपका वोंट बी द काम बेस्ट पर्सन टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन फॉर दिस बिकॉज I don't really know how the system functions. I don't know the intricacies of how the system functions. I'd love to delve into it further, but मैंने सिर्फ surface level पे इसको देखा है, इसको experience किया है. तो इस फिल्म से क्या इसका आपकी depth लाइफ में क्या बदला फिर? क्योंकि सब्जेक्ट ये सोशल इशू सब्जेक्ट है, ये वैसी कोई फिल्म नहीं है कि देखिए हम चले गए, सोचने वाली फिल्म है। 100%. मेरी लाइफ में मैंने काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं. I've stopped dairy. I don't give my child milk to drink.